A very warm good afternoon to all of you present here. First of all, I'd like to extend my heartfelt gratitude to Jagannathan ji, Shefali ji, and all the organizers for having me here. It's been 8 years that I'm writing, and I have attended some of the most happening literature festivals in India. And Western Ghat Lit Fest is truly unique in the sense that I saw like a lot of culture, history, and legacy has been discussed on the platform. And this year on, you have also decided to include Tales of Valor in this platform, which is again very welcoming and wonderful thought. Because see, when you talk about culture, history, and legacy of a nation, of Bharatvarsh or any nation, that circle cannot be completed without mentioning the warriors, the soldiers who have spilled their blood for this, to retain this culture and history and legacy. So thank you again. Thank you for having us here and listening to the sights of our soldier. Talking about my journey, Shefali ma'am, uh, actually, I'm a destined author. I never planned to be an author. I am a BITS Meshra alumni. I was working in corporate. Then I was a very simple homemaker. I have two children. Younger one is now, this time he's 5 years old. And I started writing when my eldest one was hardly 3, 4 months. So I never planned it. In fact, I tried to quit it many times. बट सी वो कहते हैं ना कि अगर डेस्टिनी होती है, आपको खींच के ले जानी है तो कहीं खींच के ले जाएगी. सो सेइंग दैट, व्हेन यू से वाइफ ऑफ अ डिफेंस पर्सनल, we are a fraternity of million women strong, and we are a very compact, confidential, and close society. Because our husband is in a profile like that. So, not many women from our fraternity come outside, and we have the most fascinating stories. मतलब आपके जो योद्धा हैं, जो वीर हैं, जो देश की पहाड़ों पे चढ़ते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस को फेस करते हैं, बर्फ में, पहाड़ में, डेजर्ट में, जो फियर्सेस्ट ऑफ एनिमीज हैं आपके, जिनसे आपकी रक्षा करते हैं, उनकी कहानियाँ कितनी फैसिनेटिंग होती होंगी, नहीं आती हैं सामने. हमारी कोई लॉबी नहीं है, हमारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है. हम एक ही आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, वो है देश प्रेम, नेशंस फर्स्ट. सो ईश्वर चाहते थे कि somebody from the fraternity comes outside और वो ऑथेंटिसिटी के साथ लेके आए कहानियाँ. तो it just happened to me. और एक के बाद एक किताब आती गई, सफल भी होती गई. शायद सफल नहीं होती, लोग नहीं पढ़ते, तो मेरा शौक हो जाता कि मैंने एक किताब लिख दी है बस, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा फुल फ्लेजेड एक जिंदगी है. बट किताबें सफल होती गई, लोगों को पसंद आती गई, बिकॉज बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है. और बट हाँ, कहानियों की जो पावर है, जब मैंने अपने आप को सीरियसली लेना शुरू किया, वो मैंने किया फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस के बाद. मेरे 2 फिक्शन लिखी थी, सोल्जर्स गर्ल एंड लव स्टोरी फॉर कमांडो, 2016-17 में. तब फौज के बारे में बातें भी नहीं होती थी. ये सर्जिकल स्ट्राइक एंड उड़ी अटैक्स के बारे में ना थोड़ा नेशनल मीडिया में फौज आने लगा. हम उससे पहले लिखते थे. तो मेरी जो किताबें हैं वो आर्मी वाइफ्स जो हैं, आर्मी गर्लफ्रेंड्स, जो यंग कैडेट्स होते हैं ना मिलिट्री एकेडमीज में, जो लड़के लोहा बनने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उनकी बहुत पसंदीदा किताब होती थी. वो अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देते थे. ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, फौजी सरल होते हैं, बट एक किताब आ गई थी तो वो उनको एक अच्छा वो मिल गया था, भाई छुट्टी में आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड कान खारी दे दो. फिर उन किताबों में जो न्यूली वेडेड होती थी, and then the second one, the love story of a commando, when that book came, Galwan standoff has happened. So a lot of young wives, they would tell me, they will message me that in those stories we found ourselves. But it is the third book, The Force Behind the Forces, written on the war widows, the wives of the soldiers who have lost their husbands in the line of duty. For us, their soldiers have, their husbands have lost their lives for us, for our sovereignty, freedom. So I wrote that book, and it was that time I realized the power of words, power of stories. This world is all about stories, na? Everything is a narrative, everything is an ideology. So this was a perspective which said that women behind the forces are equally strong, in fact stronger than our soldiers, and people really, really loved it. And then came Balidan,
which talks about our special forces. It's a very, very exciting, high on adrenaline book, published by HarperCollins. And now I'm taking myself seriously after fourth book, that okay, this is the book. I have to do the authoring because people like to read me. My next book is on Air Force. We'll talk about that so this in a is bit. about my journey. Yeah, thank you. Thank you, Swapnil. जो वीरों की the heroes that she was talking about, well, we have an example right here. योगेंद्र सिंह जी, a legend hero, परमवीर चक्र. इससे तो ज़्यादा वीरता, it's not possible to be a greater veer. He's a paramveer than this. So his book, which is available outside, The Hero of Tiger Hill, it's a very, very riveting read. In fact, I read the Marathi translation first, which has been done by my friend Sunetra. In fact, she has translated her book as well and his book as well. It's very interesting. So I read both their books in Marathi first and then in the original. सर मैं पूछना चाहूँगी, he will speak in Hindi, wherever necessary I will translate. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 19 साल की उम्र में आप सैनिक बने, जिस उम्र में आजकल के जो सिटीज़ के बच्चे होते हैं वो पब्स में जाते हैं या कॉलेज में पार्टी करते हैं, उस समय आप सर्विंग सोल्जर थे, तो और आप एक बहुत ही छोटे परिवार से, बहुत एक छोटे गांव से आए, तो आपका जो जर्नी है वो कैसा रहा और क्यों आपको लगा कि फौज ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल, मैं गांव से हूं और एक किसान का बेटा हूं, एक जवान का बेटा हूं, और गांव ही हमारी राष्ट्र की सनातन संस्कृति का सबसे सूत्रधार है। जो यहाँ पर पिछले जो वक्ता थे उन्होंने उल्टा प्रदेश कहा, ये उल्टा प्रदेश नहीं, सच में ये उत्तम प्रदेश ही रहा है। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद में भी। आज़ादी की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो ये, और आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा धरा रहा जहां 21 परमवीर चक्र में से 5 परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश के हैं। और वो क्योंकि माँ और पिता बच्चे के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, जिस तरह के वो भाव और भावनाएं उस बच्चे के अंदर डालते हैं तो बच्चा तो उसी तरह के भावों में जीता है। पिता अपने दोस्तों को बड़ी कहानियां सुनाया करते थे, 65 में हमने ये किया, 71 में हमने ये किया, लाशें पड़ी होती हैं फिर भी चलना होता है, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। ऐसे कैसे हो सकता है? हम पूछते थे सवाल, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना सोए कैसे आदमी काम करेगा? बोला नहीं करते हैं। फिर 6 क्लास में आया तो अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा, जिसने अकेले, हिंदुस्तान का अकेला सैनिक जिसने पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त किया और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो गया। उसकी कहानी को पढ़ते ही फिर लगा नहीं, फौज में जाना है। फौज में क्यों जाना है? ये पर्पज भी मिल गया कि युद्ध लड़ना है। तो इसलिए आज मैं जैसे युवाओं के बीच जाता हूं, पूछता हूं भाई डॉक्टर क्यों बनना है? मम्मी ने बोला है। अच्छा इंजीनियर क्यों बनना है? पापा ने बोला है। तुझे क्या बनना है? पता नहीं अंकल। यानी पर्पज ऑफ लाइफ का नहीं पता है। जब पर्पज नहीं होगा तो पैशन नहीं होगा, पैशन नहीं होगा तो परफॉर्मेंस नहीं होगा, और परफॉर्मेंस नहीं होगा तो पॉजिटिविटी नहीं होगी, और पॉजिटिविटी नहीं होगी तो जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो डेडिकेशन नहीं होगा। उस भाव से 16 साल 5 महीने की अवस्था में फौज में भर्ती होकर गया। मेरे बहुत सारे दोस्त कई बार उन्होंने जो है भर्तियां देखी लेकिन नहीं सेलेक्ट हुई, और मैं पहली बार, मां को बच्चे की कमजोरी और ताकत का पता होता है। भाई से और फादर से मना किया था इसको मत भेजना, ही पहली बार में भर्ती हो जाएगा। उन्होंने बड़ा कमेंट्स किया, अच्छा इसके लिए कई भारत सरकार ने अलग से वैकेंसी निकाली, रिजर्व सीट है। बोले नहीं रिजर्व नहीं, ये पक्का हो जाएगा भर्ती, और एक ही बार में गया, भर्ती होकर के चला गया। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, सच में अभी जो मैम ने अभी इसकी योगा के ऊपर जो बातें की, ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग, ये सांस हमारे जीवन के हर कार्य से जुड़ी हुई है। और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ
तो इस ब्रीदिंग की वजह से बैठा हूं। माँ ने 6 क्लास से भी पहले आध्यात्म में डाल दिया था। वो बस गायत्री मंत्र का जाप करना है, 1 घंटे सूरज की तरफ बैठ करके माला का जाप करना है। सुबह पीले कपड़े पहनना, संडे को जाकर के छत पे बैठ जाना, 1.5 घंटे तक बैठे रहना, माला का जाप किया। वो स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई। जब पाकिस्तानी गोली मार रहे थे ना, अगर सांस चल रही होती तो बॉडी हिल रही होती, बॉडी हिल ही नहीं रही थी, इसलिए वो गोली मारते रहे और उनको पता ही नहीं चला कि जिंदा भी है। ये उस जर्नी से स्टार्ट हुआ। और हम सोचते थे, क्योंकि अभी 16 साल की उम्र का बहुत जिक्र हो रहा था, 16 साल की अवस्था बहुत खतरनाक अवस्था होती है। सच में हमने जब पहले पढ़ा था कि 16 साल का वो लड़का जो इस धरती पर पैदा हुआ और जिसने दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं के द्वारा रचित अभिमन्यु अब चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। हम काल्पनिक समझते थे, काल्पनिक होगा, लेकिन आज की जो मॉडल माँ है उन्होंने उसको साबित कर दिया है कि सच था वो। क्योंकि आज की माएं बड़े गर्व से कहती हैं, मेरा 1.5 साल का बच्चा मोबाइल ऐसे ऐसे चलाता है। तो उसने गर्भ में मोबाइल ही सिखाया था, तो मोबाइल ही चलाएगा वो। उसने चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा सिखाई थी, चक्रव्यूह तोड़ दिया। तो माँ के गर्भ में आकर के बच्चे ने बहुत कुछ सीखा, फिर इन्वायरमेंट से सीखता है, घर से सीखता है, और फिर यही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई चली जाती है। I'll translate a little bit. Do I need to translate or did everybody understand it? Everybody understood it? Yes. Okay. So I'll translate it in short. He says that he belongs to a very small village, and villages are the real place where Bharat lives, and which is very true as we have seen from yesterday. And his father was also a serving officer, so he grew up listening to the war stories by his father about the 71 war, about the 65 war, and he used to keep asking questions to his father. And his mother instilled in him great respect for Sanatana values. When he was a child, he was made to recite the Gayatri Mantra and do pranayam. And that practice, he says, really helped him in the war, because when he was hiding from the enemy lines, in the sense that they were facing the enemy lines, where if he was breathing, they could sense movement and they could shoot, but because he could control his breath, because he could do pranayama, he could stay absolutely still, and that is the reason why he could do what he did, and we'll talk about that a little bit later. And he also talked about it is the influence of the mother, it's the influence of the father, it's the influence of the home, and it's the influence of surroundings that makes a person's character what it is. It's really, really remarkable. Or the other thing that he said, that if you don't have passion, first पे क्या बोला था आपने? Purpose. If you don't have purpose, you don't have passion. If you don't have passion, then you don't have Purpose, performance, and positivity. And if you don't have performance, you do not have positivity. Basically, what you need in life is purpose, which is very, very true, and I think it's true for all of us. Coming back to you, Swapnil. As a woman writer, when you're talking about war stories, when you're writing war stories, and your books involved a fair amount of preparation, fair amount of research, fair amount of going and talking to the families of the soldiers. So did you ever feel that you were not being taken seriously because you were a woman, or was it very comfortable for you? Actually, if we talk about seriousness, I am one of the most seriously taken author currently in India in defense genre. I know that. I am asking you, when you started writing the book and collecting the information, were you taken seriously then by the people that you were interviewing, or? Yeah, that's what I'm coming in. Yeah, okay. See, that's what I'm saying. Why? Because I belong to defense fraternity. So unlike the popular perceptions, Fauji's are the most chivalrous men you will ever come across as a woman. They keep their woman on pedestals, or any woman in that matter. I don't know how many of you know, but when a cadet joins a military academy, in their first year, they are taught how to treat a woman. This is taught. In personality development, there is a courses. The Faujis there are raising their hands.
So they are taught how to treat a woman, because it is assumed that when you're a soldier, you're a powerful soldier laced with a gun, you have certain power, and you don't know how to respect women. And respecting women is basically, again, culture of our country. So it is taught to a soldier. So that was never a problem to me. But yes, when I go outside, people, uh, they find it very astonishing that a woman is covering war stories and writing about the operations, and very big operations like Pampore operation, when the terrorists have captured an entire building of JKEDI, Captain Tushar Mahajan, Colonel Santosh Mahadik we were discussing. Again, he was a commanding officer who sacrificed his life leading from the front. So these are the kind of stories that I'm covering. Major Shashidharan Nair story. He belonged to Kerala. So, but because I live with these men, I live, breathe, and it's been 15 years, so they come really naturally to me, and people have been encouraging to me. In fact, being a woman has been benefit to me, because I am touching that feminine touch to the otherwise masculine stories of soldiers. You know, I am portraying them as fathers. Most people think that they are war machines. They only imagine that soldiers are fighting the wars. They are just the robots maybe, and they're just the war machine. No, they are, look at him. You know, he's a soldier. Look at me, I am a family. So we are also family person. We are sons, fathers, daughters. It's very much like our aspirations are similar to everybody else, you know. So that touch, and me being there, I am also bringing forward the stories, struggle, and sacrifices that family of a soldier made. Like everybody here knows about Saab, Yogendra Saab. He's a living legend. He's a Paramveer Chakra. Anybody thought about his wife? When I met him, I asked about his wife first. So when a woman is writing, ma'am, the woman's side is coming forward, and people have been very, very encouraging about it. That's really wonderful, actually, and that's a very unique perspective that you bring on board, actually. Yogendra ji, I remember we were all, many of us in my generation at least, we were in our 20s when the Kargil war broke, and it was the first war that was televised live. And I remember all of us were glued to the television, and we were watching day by day what was happening, where was Indian Army going, what are the operations that they were doing. And suddenly the war that, you know, that seemed distance became a part of our life. हमारी जिंदगी का हिस्सा बना, क्योंकि हम रोज देख रहे थे कि क्या हो रहा है. आप उस वॉर में आपने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, और आपका जो टाइगर हिल का बैटल है वो तो लेजेंडरी है. मैं आपसे थोड़ा सा उस बैटल के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन था, कैसे हुआ. बिल्कुल, ये कारगिल का वार एक ऐसा वार था जो पूरे देश ने टीवी के माध्यम से अपने घरों में बैठ कर के देखा था, और पूरा देश एक सोल्जर्स के साथ इमोशनली जुड़ गया था. तो वहाँ टाइगर हिल द्रास सेक्टर की वो पहाड़ी थी जो 70,000 फीट ऊंची थी, जिसने पूरे द्रास सेक्टर को डोमिनेट कर लिया था. वहाँ से पहाड़ी की हाइट ज़्यादा होने की वजह से डोमिनेटेशन ज़्यादा था, तो दुश्मन दूर तक देख सकता था, तो मार सकता था. तो हमारी एक घातक प्लेटून थी, उसको आदेश दिया कमांडो टीम, उस पहाड़ी पर चढ़ना है. -20 डिग्री टेम्परेचर. अभी अगर 10 मिनट भी बाहर कमरे से खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता. हम 21 जवानों की टीम, खून टपक रहा था, चल रहे थे. रात को चल सकते थे, दिन में नहीं. फिर रात भर चलते थे. तो इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चलते रहे. तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है. बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था. रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया. दुश्मन ने फायर खोल दिया. केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया. और ये 7 जवान 5 घंटे तक 150 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ते हुए. शुरुआत में जब वो ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है, और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है. जब लगा कि मरना है तो
जो हिंदुस्तान की माँ हैं उनको मैं नमन करता हूँ कि अपने बेटे को जब विजय तिलक लगा करके भेजती हैं तो कहती हैं सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। और हिंदुस्तान की सेना में एक ही वर्ड होता, एडवांस, विड्रॉल नहीं है। मरना है तो हमारी माओ ने और इस भारत माँ ने सिंह और शेर पैदा किए हैं, तो सिंह और शेर की तरह लड़ करके मार करके मरना है। ऐसे ही लड़ते रहे और फिर ऐसी परिस्थिति आई जो आज तक तो सिर्फ आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक न बोल पाया। ऐसे ही मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी हेल्प के लिए आगे आया, पाकिस्तान की आर्टिलरी का बम वहाँ पर गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके से दूर जा करके पड़ती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। नाकों से देख रहा था, उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी और वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर गिर गया। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके हमारे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रिजेक्ट करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। फिर इधर से भी पैर में गोली मारी, बॉडी में कोई हरकत नहीं। उनको लगा कि ये मर गया। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव किया, हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। और ये सब कुछ पड़ा सहता रहा, देखता रहा। बहुत देर ये तांडव करने के बाद उनका एक कमांडर सुने पुनः बोला अपने साथियों को, बोला नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला करो और इनके हथियार उठा लो। जैसे ही हमारे हथियार उठाने के लिए कुछ जवान आए, कुछ गोलियां मार रहे थे, तो वो जब नजदीक आए तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और आज उसी विश्वास से बैठा भी हूं आपके बीच में। वो आया, दोबारा से गोली मारी, उसने बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, मैं देख रहा था, रुक गया वो। उसके रुकते ही उसने पीछे मुड़ा, राइफल ऐसे सीने की तरफ करी। तब कुछ पल के लिए लगा कि यार अब तो नहीं बचेगा, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ ऐसे नहीं कहते। ये माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। शायद मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंटें फट गई थी चलते चलते। उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा, तो जाकर के गोली सिक्कों पे लगी, रिकोचिट हुई। उस गोली के फोर्स से, पावर से मुझे लगा मैं मर गया हूँ। फिर वो पाकिस्तान का जवान मेरा हथियार उठा करके जाने लगा होगा, उसका पैर शायद मेरे पैर से टकराया, तब मुझे चेतना आई। तब लगा योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। पहले ग्रेनेड से हमला किया तो एक पाकिस्तानी का सर फटा, फिर उसके हाथ से राइफल को उठाने की चेष्टा करी, ये हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, फिर वहां से फायरिंग किया, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तब लगा, उनको लग गया कि यहाँ अकेला नहीं है, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके पैर उखड़े, भागे वहां से, बेबस लाचार था, चल नहीं सकता था, पैर की मसल्स निकल गई थी, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ। खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर आगे गया। फिर जाकर के देखता हूँ सब वो भागते हुए जा रहे हैं। उनका सामने तो लंगर चल रहा था, लिविंग टेंट लगे हुए थे, वेपन के डिप्लॉयमेंट,
सब कुछ छोड़ करके भाग रही। फिर मन में ख्याल आया, फिर वहां बहुत देर योगेंद्र नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर धीरे धीरे खिसकता अपने साथियों तक आया जहां पर शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। आकर के देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे, किसी की गर्दन उधर थी, किसी का पैर उधर था, तो किसी के हाथ उधर थे। बहुत देर बैठ करके रोया। 2 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, उस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, कहीं पता ही नहीं था। लेकिन हम जब सच में सोल, आत्मा से रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और हम ये बॉडी, ये शरीर तो नहीं है, हम सोल हैं। और वो सोल, वो आत्मा तो परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो ऐसे रोता हुआ मैं अपने आप से जुड़ा, अपने परमात्मा से जुड़ा, तो शायद उस सुदर्शन चक्रधारी से जुड़ गया होऊंगा। तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे नीचे की तरफ यहां से चला जा। उस आवाज की बदौलत 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, और उसी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर दोबारा से उस पहाड़ी पर हमला हुआ, और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, फिर सीज फायर हो गया। आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र भी होता है, लेकिन दुख ये भी होता है कि हमें ये भी पता नहीं होगा कि वो 61-65 में तो कितने लोग मरे होंगे, उनका तो कोई काउंटिंग नहीं, लेकिन ये तो था। हम ये भी नहीं जानते होंगे कारगिल वॉर के अंदर कितने हमारे वीरों ने शहादत दी है। 545 मां भारती के बेटों ने इस आजादी की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। और मुझे फक्र हुआ कि मैं इसी वर्ष, क्योंकि 2024 कारगिल की रजत जयंती वर्ष है, 25 साल पूरे हुए, उनमें से 300 प्लस फैमिलियों से मिला हूं। क्योंकि मुझे वो याद आया वादा, जब लास्ट में कमांडिंग ऑफिसर कहता है कि लास्ट चिट्ठी लिख दीजिए, तो लास्ट चिट्ठी में क्या लिखेंगे हम? मैं ठीक हूं, अपना ध्यान रखना। लेकिन जब साथ में चलते हैं ना, तो बोलता है यार अगर मैं मर गया ना तो मेरे घर एक बार जरूर देख के आना, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। जब वो आज उनके पास गया तो शायद उनकी सोल, उसकी आत्मा वो घर तक जरूर पहुंची होगी। आज वो फैमिली जो उसके उस समय 2 महीने का पेट में गर्भ था, आज वो 25 साल का बच्चा है, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। और आज हमारे लिए वो साहस की, विश्वास की और आदर्श की एक प्रतिमूर्ति के रूप में है। मुझे महाराष्ट्र की एक बीड़ की लेडी मिली, उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया, बोला मेरे 1 महीने की बेटी थी जब मेरा पति शहीद हुआ था। ससुराल वाले अलग खींच रहे हैं, ससुराल और मायके वाले अलग खींच रहे हैं। बोला समाज बहुत इतना आसान नहीं है इस समाज में रहना। समाज से लड़ी, बोला नहीं, दोनों पक्षों को साथ में लेकर के जीऊंगी। 15 साल संघर्ष किया। 15 साल के बाद बोला मैंने एक कंपनी अलग से खड़ी करी, और आज मैं इस कंपनी के जरिए बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही हूं। तो ऐसे योद्धा हैं इस देश में, ऐसी वीर नारियां हैं। और ये जो सैनिक वहां पे लड़ पा रहा है ना, तो नारी के बगैर नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि इस देश में ही ऐसा है जो एक पत्नी अपने मांग के सिंदूर को राष्ट्र पर कुर्बान तो कर सकती है, लेकिन अपने मांग के सिंदूर को कायर देख नहीं सकती है। एक बेटी अपने बाप को कायर होता हुआ नहीं देख सकती है। एक बेटी अपने बाप को एक वीर योद्धा के रूप में देखना चाहती है, एक माँ देखना चाहती है। तो वही जो भाव हैं वो सैनिक के पास पहुंचते हैं। इसलिए सैनिक अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता और सब कुछ अपने राष्ट्र पर कुर्बान कर देता है। कुमार जो है, एक कौन से कुमार हैं, उन्होंने 1-2 लाइन बहुत अच्छी लिखी। जब घर में शहीद का उनकी दाह संस्कार की नहीं है, तो बोला आपका पति शहीद हो गया। उन्होंने कहा, तो वो पत्नी क्या कहती है कि अकेला था कमाने वाला। बोला बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई,
अचानक एक ऐसा धमाका हुआ, इस शरीर की सारी बोटियां ही चली गई। साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो सारी रोटियां ही चली गई। तो उसने उन चीजों को देख करके मैंने भी सोचा कि मैं एक बुक लिखूं, और प्रेरित हुआ। और फिर हीरो ऑफ टाइगर हिल, जो अपने पिता फौजी थे, सिपाही थे, नाम तो इसको देना चाह रहा था एक सिपाही का परमवीर, लेकिन और उन्होंने जो है इसको हीरो ऑफ टाइगर हिल के नाम दे दिया। तो ये एक फौजी की कहानी है, और फौजी पूरा राष्ट्र को समर्पित है, और हर सांस उसकी जो है, और तभी वो कर पाता है क्योंकि जो उसकी जो घरवाली है वो घर को संभाल लेती है। I cannot translate this. You will have to buy the book and read the story from his own. I really cannot translate it, but I have goosebumps, and I'm sure all of you do. It's a remarkable story what he has told, and I really cannot translate this. I'm sorry. Give me a minute to just recover from this. Coming back to you, Swapnil, and what Yogendra ji has actually said fits in very nicely with your book, The Force Behind the Force, that जब सैनिक लड़ता है, when a soldier fights on the front, it's not just him who is fighting. Somebody had told me once a very powerful quote, those who wait also serve, because those who wait for him at his home, his family members, they also serve. They may not be in the uniform, but they are every bit serving as much as the soldier is. So tell me a little bit about your book, The Force Behind the Forces, which basically talks about the same stories. जैसा योगेंद्र साहब ने कहा वीर नारियों के बारे में, English, please. सॉरी, आई एम सो सॉरी साहब, आपके साथ ना मेरे भी हम हिंदी भाषी वर्ल्ड से आते हैं. So as Yogendra Saab mentioned about war widows, and as he mentioned about women behind the forces, and he said that a soldier cannot fight without the support of the women behind. See, it's not a new concept. Everybody in the forge understand this, because you have to understand Indian soldiers are unlike soldiers of any other nation. We are not mercenaries. We are not fighters of Ukraine or Afghanistan. Taliban had taken over. Okay, so there are a lot of examples from the world across, and lot of ideologies that these soldiers belong to. But when we talk about India, India is a culturally rich nation. We are the nation of families. We have the examples of Sita Ram, Radhe Krishna, Mirabai. You know, there's always emotions. Even the wars of Mahabharatas, Ramayana, these wars have been fought over the dignity of a woman. So these are our roots from where we belong to, from where our women, where mothers have raised, men like Yogendra Saab and all the Indian soldiers. There are soldiers sitting there, Wing Commander Sudarshan and Group Captain Venkatesh. I met them. Some of the soldiers from Indian Armed Forces are sitting amongst us. So these men are raised by strong women, and every name you pick out of the history who have done anything for the Bharat Varsha, for our identity, you will always find a woman behind. Like Chhatrapati Shivaji Maharaj, उनकी मदर का नाम आता है. ऐसे बड़े एग्जाम्पल, सीता राम, हम आज भी we mention Sita ji before Ram. So the same ideology, the Indian soldiers, when a girl is married to a soldier, the first thing that is said to her, the first day, which is said to her by her husband, is that you'll always come third. The first will always be the mother nation. He is a boy. The soldier is a boy who has been picked by armed forces at the age of 17, maybe 18 or 19. And he's trained and groomed that way. So he says that my nation comes first, then comes the men I command, and then my family or you will come. And she's that girl who accepts this ideology. See, again, this narrative is very, very important, because in today's time, why I chose to write about the force behind the forces, highlight the courage of because I mention really beautiful love stories.
there is a mention of one story, the eternal love story. It is the love story of Major Shashidharan Nair and his wife Trupti Nair. Now Trupti is a paraplegic person, and the soldier Major Shashidharan Nair sacrificed his life in an IED blast. सब वो IED blast में he lost his life. And what has happened that they were aware. Well, he was posted at a sector LAM. LAM is right at LOC. Right at LOC. Not 10 kilometers behind. So those days after surgical strike has happened and he sacrificed his life in 2019. So intense cross-border firings would happen. Even the artillery shellings would happen in that sector. And Pakistanis would, lay IED mines. Their militants would come and lay the mines and all. So at one point of story, when I was researching his story, I got to know the JCO who was with him in that particular war. He mentioned that Saab knew that IED blast is there, IED is there, and yet he said कि साहब तुम बाल बच्चे वाले हो, you have children and family behind you, you have a big family, I just have my wife, my mother and sister. Now listen to this. This woman Trupti is a paraplegic person. Major Shashidharan Nair was not just her husband, but also the purpose of the life. And we are living in an era where marriages are broken over reasons like caste, color, creed, dowry system. If you will not like the girl, you will reject her. This soldier, this is a true story. Right before their marriage, after the engagement, Trupti was discovered with a rare disease which lay her motionless below the waist area. And what it takes to break a marriage? We don't want to get married. But Major Shashidharan's mother, she said, if this would have happened to our daughter, what would have we done? She's like our daughter, and mother-in-law is saying that. And that soldier, he marries that girl, and they live happily ever after. And he was the only son in that family. His mother was again a widow. The sister was unmarried, and he had a wife to look after, And when it comes to sacrificing his life for the nation, he chooses the nation. And remember it, please look at yourself. Ask yourself, will you do this? Maybe not, but our soldiers are like that. So he chooses that, he goes there, and in the blast he sacrifices his life. Now when I was talking to Trupti, she would cry all the time. She would cry all the time. It would take a lot of toll on me. I would feel, what am I doing? But then again, it is a very, very noble cause. A lot of people need to know this, that these kind of love stories exist, because we are living in an era of information hybrid warfare, narrations, where we are taught that true love stories do not exist. In fact, there's one very beautiful story in Balidan where the love story we are almost running out of time. I'm really sorry. So can you sum up? I mean, I'm sure all the people will buy the book and read. Yeah. The love story that I was talking about in Balidan has started in Isha Foundation. Okay. So Sadhguru is very, very responsible for that love story. So these are the kind of love stories I am bringing forward, where I'm telling people that true love stories exist. Women behind the forces are equal heroes, and these are inspiring stories, and they have got some purpose. And because in today's time, narrations are playing very disruptive role. So this is all about. I'm really sorry because of the time constraints. I'm sure that all of you will feel that if this session can go on and you will not get bored, but we have other speakers as well. So I have to wrap it up. I have to cut short question time also, because this clock is wrong. I've been told that my time was only 2:40. Now it's 2:44. I will end with योगेंद्र जी, and I will ask you the last question, sir. जब आपने ये किताब लिखी थी, तो आपने लिखा था कि ये किताब मैं इसलिए
इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरी कहानी दुनिया को पता चले, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये कहानी पढ़ के इस देश के युवाओं को इंस्पिरेशन मिले फौज ज्वाइन करने के लिए, सोल्जर बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। तो अगर आपको देश के युवाओं को कोई संदेश देना है तो आप क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, मैं देश के युवाओं को बस यही संदेश दूंगा कि नेशन फर्स्ट, और इस देश के लिए ही अपने आप को जिएं और इस देश के लिए ही इस देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस देश ने हमें शिक्षा दी, संस्कार दिए, सांस दी, खान पान दिया। अब और क्या चाहिए? अब हमें देने का काम आ गया है, अब हमें देना चाहिए। तो बस 2 लाइन कह रहा हूँ कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारा किसका? युवाओं का। पूरी दुनिया कहती है भारत युवाओं का राष्ट्र है, 65% भारत में युवा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस 65 में से 80% को ये पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। रील का जमाना आ गया, रील बनाते हैं रात भर और रात को 2:30 बजे तक। तो ये रील ताकत नहीं देगी इस राष्ट्र को। तो हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। That was amazing and inspirational. Unfortunately, yes, they both deserve a standing ovation.